Good evening, everyone. Good evening, Tulsi. Long time. Good evening. So, in the final domain of transparency and accountability, and in a way, anti-corruption government. Thank you. It's a better but long recovery. There's a surgery also that has to happen. That will happen sometime later. Anyway, so we are in the larger domain of transparency and accountability and anti-corruption governance, and we're going to be discussing Citizens Charter. Now, Citizens Charter for the mains exam is an alternating topic, which means that if it has not been asked the previous year, it means there is a good chance it can be asked in the current year. Now, we've done our PYQ analysis and we know that Citizens Charter was not asked in 2025 mains. Is that correct? Yes. Which means that for 2026 mains, we should be prepared for Citizens Charter. Okay. I hope your mother's all right. All right. I'm so sorry. I hope you're also okay. Uh, I'm sending my warmest regards to you and your mother. I can understand it gets very difficult and all of that, but may you have the courage to sail through this. चलिए शुरू करते हैं. सो जब हम सिटीजन्स चार्टर पढ़ेंगे, एक चीज हमको बहुत क्लियर है. When we've looked at our mains questions, Citizens Charter questions are fairly theoretical. They are fairly general or generic in nature, which means we can strive for absolute excellence in Citizens Charter. We should be able to write the best possible answer on Citizens Charter and get the most amount of marks if there is a question. This is a low hanging fruit. जब पता है कि कोर थ्योरी क्वेश्चन आएगा और पता है जेनेरिक क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब इसको हम एक्सेलेंस पे लेके जाएंगे. यस, तो इसको कैसे करेंगे? सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, we'll do a good introduction and context setting. Then we will understand the Indian scenario. How did we implement it? How did we imbibe it? Then we will understand the components of Citizens Charter. We will also understand how it is to be implemented, their implementation frameworks. We will then also look at certain contemporary developments in and around Citizens Charter. We will look at the kind of impact it creates. And we will also look at a larger set of examples, both locally and internationally, and see how exactly the Citizens Charter have the best possible use case. And finally, we will look at interlinkages of Citizens Charter, which means Citizens Charter plus RTI, Citizens Charter plus Public Service Acts, Citizens Charter plus e-governance. How does Citizens Charter make existing governance tools better? Isn't that the case? Yes or no? Simple as that. Good. तो शुरू करते हैं. Do we understand the framework? Simple as that. ठीक. Let's start. The introduction or the context to things. तो basically Citizens Charter है क्या? Citizens Charter is effectively a tool for enhancing or for making public service delivery better. ये जो टर्म है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, आपको पेपर 2 और पेपर 4 में बहुत यूज करना पड़ेगा. So it is to effectively enhance public service delivery
to make it better. And how? By increasing transparency and by increasing accountability. Correct? तो इसका मतलब they're already there on the portal, Prabhat, on the Telegram channel also as a pinned message you can download. Otherwise, I'll share them with you separately. Don't worry. So that means when we look at transparency, accountability, and better public service delivery, citizens charters can be at the center of it. ठीक है? अब ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट 1991 में यूके में कंसीव किया गया था. उस टाइम पे यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर, MAJOR, John Major. So Citizens Charter was developed as a policy initiative in the UK to improve the rights of the citizens so that citizens can hold service providers accountable. देखो, the citizens in any country in the world are dependent on the government to provide them certain services. अब वो जो नेचर ऑफ सर्विसेज है, जो स्कोप ऑफ सर्विसेज है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफर करेगी, वो कंट्री टू कंट्री डिफर करेगी. द मोर वेलफेयरिस्ट अ गवर्नमेंट इज, द मोर सोशलिस्ट अ गवर्नमेंट इज, द वाइडर वुड बी द रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. The more facilitative the government is, the more non-interventionist the government is, the lesser involved the government is, the lesser are going to be the services provided. But given the fact that the state is your national regulator, social contract theory तो citizens और state का relationship बताती है. तो चाहे गवर्नमेंट सोशलिस्ट हो या ना हो, कुछ ना कुछ इसेंशियल सर्विसेज तो गवर्नमेंट को सिटीजन्स को प्रोवाइड करना ही पड़ेगा. कुछ ना कुछ सर्विसेज तो गवर्नमेंट सिटीजन्स को देगी ही देगी. यू कैन नॉट हैव ए प्राइवेट अथॉरिटी इशूइंग यू अ ड्राइविंग लाइसेंस. यू कैन नॉट हैव ए प्राइवेट कंपनी इशूइंग यू अ पासपोर्ट. There are going to be some services, no matter what country you are in the world, those have to be provided for by the government. ये तो बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है, right? Make sense? Good. Now, with this in context, इस यूके के आइडिया को बहुत सारे कंट्रीज ने अडॉप्ट किया. इट हैज बीन इंटीग्रेटेड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इट हैज बीन इन फैक्ट वन ऑफ द बैकबोन ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. कि आप सरकार को कोई दानी मत मानो, आप सरकार को कोई एहसान करने वाला इंस्टीट्यूशन मत मानो. आप सरकार को किसी चीज के लिए टैक्स देते हो, किसी चीज के लिए आप सर्विस की फी देते हो. आपको अगर वो नहीं मिलती है तो आपका हक है सवाल पूछना. क्लियर? गुड. तो इस आइडिया को जो यूके में ओरिजिनेट हुआ, इट क्विकली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जैसे 1992 में एक साल में ही बेल्जियम ने भी इसको अडॉप्ट किया, कॉल्ड इट द पब्लिक सर्विस यूज चार्टर. 1993 में इसको फ्रांस ने भी अडॉप्ट किया. फ्रांस ने कहा इसको हम सर्विस चार्टर कहेंगे. 1997 में इसको ऑस्ट्रेलिया ने भी अडॉप्ट किया. एंड सेम ईयर 1997 में इसको साउथ अफ्रीका ने भी अडॉप्ट किया. ठीक है. चार्टर क्या है? हमने नाम सुना ना, चार्टर, यूएन चार्टर. इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो सिटीजन्स चार्टर का जो ये चार्टर है, ये क्या करता है? ये आपको कुछ
स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस देता है, और अगर वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं हो रही है तो उनके लिए रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म देता है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। बात समझ आ गई? इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। जैसे कि यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम Amazon, आपको Amazon में अपना ऑर्डर ट्रैकिंग दिखता है, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। Your order has been placed, your order is being packed, your order is ready to be dispatched, your order has been picked up, your order has reached your city's courier facility, your order is out for delivery. ठीक है? अब आपको जो Amazon से ऑर्डर मिला वो ऑर्डर डिफेक्टिव था, तो आपके पास एक मैकेनिज्म है जिससे आप Amazon की कस्टमर केयर को रीच कर सकते। Amazon भी तो आपको एक सर्विस ही दे रहा है, तो जो चीज Amazon कर रही है उसी चीज को अगर आप लार्जर देन लाइफ के व्यू से देखो तो उसे हम सिटीजन चार्टर कहते हैं। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जरा ध्यान से समझते हैं, इस इंडियन सिनेरियो को ठीक से सीखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अब टेक्निकली इंडिया में भी ये मिड 1990s में आता है। इनफैक्ट 1997 में एक चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हो रही थी, द चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो द चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन in 1997 is when the idea was formally introduced. ठीक है, एंड गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज हुआ कि हाँ भाई एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। It all comes down to whether the government is working in terms of what is the best for the citizens, and that citizen centric approach in governance, in administration, in service delivery, इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर एक्शन प्लान बनाया गया कि कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक, नाउ देयर इज आल्सो ए फेडरल एंगर हियर। द फेडरल एंगल इज कि आप ये सर्विसेज के लिए दोगे, कुछ सर्विसेज आपको सेंटर देती है, कुछ सर्विसेज आपको स्टेट देती है। तो सेंटर के लिए तो सेंटर अपने हिसाब से देखेगा, स्टेट्स को अपने लेवल पर देखना पड़ेगा, राइट? तो यहां पे you will have to maintain a federal balance and possibly you will have to coordinate center and state efforts to make it uniform. तो सिटीजन स्टार्टर का एक बहुत सुंदर एप्लीकेशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भी है, जो मुझे 100 में से एक आंसर में कभी देखने को मिलता है। तो खैर ये हुआ, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस है, DARPG, जो अब सीधा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर आता है, इस डिपार्टमेंट ऑफ रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप सिटीजन स्टार्टर इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट होगा इसकी आप देखरेख करेंगे। एंड एज ऑफ टुडे अराउंड 600 central departments and about 1100 plus state departments have their own citizens charter. I think it's 1120, but approximately 1100. ठीक, चलो ये सब हो गया इसके बारे में, बट बेसिकली सिटीजन चार्टर है क्या? देखो, a citizen's charter is nothing but a simple document. The job of that document is to outline the commitment of a government organization towards the citizens regarding the following things.
regarding the quality, regarding the timelines, and regarding the transparency of services provided. ठीक है, सो इसमें क्या सर्विस दी जा रही है, क्या स्टैंडर्ड होगा, कब ये सर्विस आपको मिल सकती है, कब ये डिलीवर होगी, और अगर कहीं पे भी गड़बड़ होती है तो आपके पास क्या रिड्रेसल मैकेनिज्म है. आर वी क्लियर? दिस इफेक्टिवली सॉल्व्स टू प्रॉब्लम्स. वन, standards of service, and two, a mechanism in case there is a grievance. ठीक है, सिंपल भाषा में सिटीजन स्टार्टर का मतलब ये होता है. ठीक है, गुड. अब सिटीजन स्टार्टर कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. इन प्रिंसिपल्स को आप सीधा सीधा जीएस पेपर 4 में रिसाइकल कर सकते हो. देयर आर 6 वेरी सिंपल, वेरी क्लियर कट प्रिंसिपल्स. पहला, क्वालिटी. दूसरा, चॉइस. तीसरा, स्टैंडर्ड्स. चौथा, वैल्यू. पांचवा, अकाउंटेबिलिटी. एंड छठा, ट्रांसपेरेंसी. अब ये कोर वैल्यूज का मतलब क्या है सिटीजन स्टार्टर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पे यू विल हैव सर्टेन कंपोनेंट्स. क्वालिटी का मतलब है कि वी विल वांट टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव आवर सर्विसेज. चॉइस का मतलब है कि जहां हो सके, जितना हो सके, जिस हद तक हो सके, हम सिटीजन्स को ऑप्शंस दे सके. स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि एग्जैक्टली सिटीजन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है. वैल्यू का मतलब है कि ये आपका टैक्स पेयर्स का पैसा है तो इसकी हम इज्जत करते हैं. टू गिव यू वैल्यू फॉर टैक्स पेयर्स मनी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि आप इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटेबल ठहरा सको कि अगर कुछ गलत हुआ है, कुछ डिले है, कुछ गड़बड़ है, तो आप पे एक्शन लिया जा सकता है. यू आर टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. और ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह है कि क्या रूल्स है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्कीम है, क्या गाइडलाइन है, ये सबको पता है. ये कुछ हवा में नहीं चल रहा. क्लियर? गुड. Now look at components. Very simple. Look at components. तो किसी भी सिटीजन स्टार्टर, इट इज लाइक एन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट. ये समझो कि सरकारी कामकाज का ये प्रियम्बल है. तो किसी भी सिटीजन स्टार्टर में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कंपोनेंट्स का मतलब है कंपोनेंट्स ऑफ ए गुड सिटीजन स्टार्टर. इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे आपके सिटीजन स्टार्टर में ये सब होना चाहिए. पहला, एक विजन और मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए. दूसरा, आप क्या सर्विसेज देने चाहते हो उसके पूरे डिटेल्स होने चाहिए. तीसरा, कोई भी गड़बड़ होती है तो उस ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए. चौथा, आप उस मैकेनिज्म के बाद एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस भी वेरी क्लियरली तय करोगे. तो 4 बातें हैं. विजन और मिशन स्टेटमेंट का मतलब यह है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कोर पर्पस क्या है और वो उस कोर पर्पस को अचीव करने के लिए क्या करना चाहती है, इसके बारे में क्लियर कट एक जगह लिखा होना चाहिए. इट शुड नॉट बी ऑल ओवर टाउन. दूसरा, इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है. रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का विजन और मिशन क्या है?
रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का विजन और मिशन ये है कि वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड ए सीमलेस, a hassle free, procedurally compliant set of passports to people who want to travel. करेक्ट? सीधी सिंपल बात तो इतनी, और तो कुछ है नहीं। यस और नो? तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो मेरे विजन और मिशन स्टेटमेंट। मेरा काम तो यही है ना, मेरा काम कुछ बहुत बड़ा तो नहीं है, मेरा बस इतना सिंपल काम है। एंड देन अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज। आप पासपोर्ट यहां अप्लाई करेंगे, इतने दिन में आपका पासपोर्ट आपके पास आ जाना चाहिए, उसमें ये प्रोसेसेस होंगी, इन प्रोसेसेस पे ये टाइमलाइन डिपेंडेंट है, बिल्कुल क्लियर कट डिटेल्स ऑफ सर्विस आनी चाहिए। तीसरा, अगर कहीं गड़बड़ हो जाती है, टाइम का, क्वालिटी का, कहीं आपको पासपोर्ट फटा हुआ मिलता है या पासपोर्ट की डिटेल्स गलत मिलती है, जब भी आपने सही लिखी हो तब भी कोई भी इशू होता है, तो मैं किसके पास जाऊं? And then finally, what is the information that the organization expects from the citizens? कि आप हमें भी तो बता दो कि क्या 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 चीजें हैं, हम आपसे ये चाहते हैं, आप हमसे ये एक्सपेक्ट करो, तो सिस्टम ठीक रहेगा ना, क्लीन रहेगा, क्लियर रहेगा। ना कोई अंडर डिलीवर कर रहा है, ना ओवर डिलीवर कर रहा है, ना कोई अंडर प्रॉमिस कर रहा है, ना कोई ओवर प्रॉमिस कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? सिंपल इज दैट? यस, वेरी गुड। नॉट लाइक कंज्यूमर अफेयर्स। ठीक है। अब इसका इंडिया में जनरली स्टेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन कैसे रहा है, क्या रहा है, इसको एक कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। माना कि 600 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स और 1100 स्टेट डिपार्टमेंट्स में सिटीजन्स चार्टर को अडॉप्ट तो किया है, लेकिन आप जानते हो हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, एक तरफ है अडॉप्शन और दूसरी तरफ है इंप्लीमेंटेशन। तो अडॉप्शन तो बिल्कुल सही रहा है, लेकिन क्या हमने इसको इंप्लीमेंट किया है? क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग एक चार्टर बना के चार्ट पेपर पर लिख के दीवार पर चिपका देते हैं। ये तो वही बात होगी ना कि सरकारी दफ्तर में गांधी जी और अंबेडकर जी की फोटो लगी होती है और वल्लभ भाई पटेल साहब की फोटो लगी होती है और उसकी फोटो के नीचे घुस लेते हैं। बात तो वही होगी। At the end of the day, it is just a piece of paper. So, while they are formal documents, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसको आप ठीक से इन्फोर्स नहीं करते, ग्रीवेंस रिड्रेसल भी आपका फॉल्टी है। तो और इन चार्टर्स को आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके अपडेट करना चाहिए। ये सारी चीजें नहीं हुई है, राइट? तो टेक्निकली देखा जाए तो सिंपल 4 बेसिक इंडिया में इसको लेके प्रॉब्लम्स है। जो सबसे पहली और सबसे बेसिक प्रॉब्लम है और यहां सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो है अवेयरनेस की। अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि बहुत लोगों को सिटीजन चार्टर के बारे में नहीं पता होगा। The only people who know about citizen charter are people who are preparing for UPSC. आप दफ्तरों में जाते होगे, देखते होगे विजन मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लिख के आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, जो उसका डिजाइन है वो बहुत ही पुअर है, कमिटमेंट्स बहुत ही वेग हैं। कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि मैं तुम्हें जीना सिखा दूंगा, वाह, मैं तुम्हें पॉलिटी से प्यार करा दूंगा, अरे ये कोई कमिटमेंट हुई? कमिटमेंट तो ये हुई ना कि जीएस पेपर 2 में 20 में से 17 क्वेश्चन अपने आने चाहिए और प्रीलिम्स में 80% एक्यूरेसी अपने एरिया से यहां से आनी चाहिए। ये सीधी कमिटमेंट है ना, सारी बात तो वहीं खत्म हो जाती है। अगर 20 में से 15-17 क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए नहीं आ रहे और पॉलिटी में प्रीलिम्स में 80% क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो फिर सारी मेहनत बर्बाद है। सीधी सिंपल बात तो यही है ना। तो सिर्फ बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अगर मैं सरकारी दफ्तरों, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट से कंज्यूमर अफेयर्स का एग्जांपल लिया, राशन कार्ड, कि मेरा विजन और मिशन क्या है
कि देश का कोई बच्चा भूखा ना सोए अगर वो राखी को जगता है तो? अरे भूखा ना सोए इज नॉट अ क्वांटिफाइबल दिस थिंग ना, कि मां की आंख में आंसू ना आए, बाप पलट की ठुठुराए ना। अरे सिंपल क्लियर कट बताना भाई, ABCDE बस। सो पुअर डिजाइन इज पुअर, कमिटमेंट्स आर वेग, एंड थर्ड, इस सबको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा सिस्टम चाहिए। और चौथा भाई, पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ इट is with the permanent executive or the bureaucracy or the civil services. Imagine कि आप इतना मेहनत करके, अभी मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा ट्यूसडे को एज एन एडिशनल क्लास, आई डोंट कुड नॉट टेक इट लास्ट वीक, विल टेक इट ऑन ट्यूसडे, विल इन्फॉर्म यू टुमारो, बट नॉनदलेस इमेजिन आप इतना पढ़ लिख के, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में एग्जांपल बहुत देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप इतना पढ़ लिख के ऑल इंडिया सर्विस का एग्जाम में क्रैक किया, आप सब डिविजनल कलेक्टर बना, और आपके सामने आगे उधर आपके सामने आके सरपंच आपका टेबल में बैठ गया और आपको ऑर्डर दे रहा है कि एक चचा फंड रिलीज कर, मेरा पंचायत का फंड आया है सेंटर से, आपको नहीं अच्छा लगेगा ना? क्यों? क्योंकि आपके अंदर ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत सिंपल बैठा हुआ है कि हम सुपीरियर है। माना कि आप एकेडमिकली सुपीरियर है, माना कि आप रैशनल है, माना कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप उस सरपंच को इग्नोर नहीं कर सकते। तो कई बार आप देखते हैं कि लोकल लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो इतनी इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का रेजिस्टेंस है कि नहीं? ब्यूरोक्रेसी का रेजिस्टेंस है कि इसको आप लार्जर लेवल पे देखो कि जब हमने वो पीएम केयर्स का कुछ आया था कोविड के टाइम पे, तो वो पीएम केयर्स पे सवाल उठाया कि भाई आपका आरटीआई के अंदर आता है कि नहीं आता है। हम अभी पिछली क्लास में एनपीसीआई डिस्कस कर रहे थे, याद है? एनपीसीआई डिस्कस कर रहे थे, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, राइट? यस, ओके दिव्यांश, ठीक है। तो जब हम सवाल उठाते हुए वो कहते हैं हमको तो ओपेक रहना है, ये रेजिस्टेंस हर लेवल पे है। तो इमेजिन कि आप फॉर एग्जाम्पल आपको राशन कार्ड इशू करना है, आप अथॉरिटी है राशन कार्ड इशू करने की, अब आपके ऊपर डंडा है कि भाई ये राशन कार्ड प्रोसेसिंग टाइम 4 दिन है, 4 दिन में अगर एप्लीकेशन क्लियर नहीं हुई तो बता दो क्यों नहीं क्लियर करे, या तो रिजेक्ट कर दो या तो दे दो, उसके ऊपर बैठ नहीं सकते। आपको अच्छा लगेगा कि मैं इतना मेहनत करके आया, फाइल रोकने के लिए तो आया मैं, कि मैं फाइल रोकूंगा, कोई आएगा मेरे पास हाथ जोड़ेगा, ऐसे सोन पापड़ी और काजू कतली का मिठाई का डब्बा लाएगा, थोड़ा उसमें से मिठाई मैं खाऊंगा, थोड़ा उधर खिलाऊंगा, ये सब करूंगा तब जाके कुछ कुछ चलेगा। So therefore, there is a very large problem of resistance। 4 ही बेसिक प्रॉब्लम है: अवेयरनेस, डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेजिस्टेंस। सिंपल, ठीक है? अवेयरनेस, डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस। अब ये ADIR के आपको जो भी बनाने हैं सिनोनिम विनोनिम आप बना लेना, लेकिन पॉइंट ये 4 ही, ठीक? अब रिसेंट इसमें पिछले 10-12 सालों में इसमें थोड़ा सा एक बार इंटरेस्ट और आया है, थोड़ा सा इसमें जान फूकने की कोशिश करी गई है कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या नहीं चल रहा, बट दिस इज द लार्जर आइडिया। आर वी क्लियर ऑन दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? ठीक।
आप इन अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसमें आप लिख सकते हो कि भाई रिसोर्सेज अलग हैं, डिजाइन और कमिटमेंट्स के दो अलग पॉइंट बना सकते हो आप, लैक ऑफ मॉनिटरिंग, लैक ऑफ इवैल्यूएशन, 6-8 पॉइंट बन जाएंगे इसमें। बट कोर यही है, इसको आपको पॉइंट्स तोड़ने होंगे तो डिजाइन के साथ साथ आपने कमिटमेंट्स जो है वो वेग है वो अलग लिख दिया आपने, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम का पॉइंट अलग लिख दिया आपने। लीगल बैकिंग पे आता हूँ, रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस आपका ब्यूरोक्रेटिक हो सकता है या लीगल रेजिस्टेंस हो सकता है, तो आपने ये अलग लिख दिया आपने, आपने रिसोर्सेज का पॉइंट अलग लिख दिया। तो ऐसे 6-7 पॉइंट्स बन जाएंगे। बट आर वी ओके विद दिस? यहां तक ठीक है? पक्का? तो अब इन सब को ध्यान में रखते हुए कुछ कंटेम्पररी डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ 3-4 चीजों जिसके ऊपर कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, कुछ 3-4 चीजें हुई। पहला, जिसको हर आपको यूपीएससी के कोचिंग के नोट में मिलता है, बट इट इज जस्ट अ कंटेम्पररी डेवलपमेंट, ये आपने नाम सुना होगा, सेवोत्तम फ्रेमवर्क। करेक्ट। दूसरा, जो मुझे आंसर्स में नहीं देखने को मिलता है, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट्स। लास्ट ईयर केरला, महाराष्ट्र वर इन द न्यूज। महाराष्ट्र के राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट को 10 साल हो गए हैं। सो राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट्स। तीसरा, ई गवर्नेंस एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स, ये भी तो एक तरफ इसी प्रिंसिपल के लिए बने। अब समझ आए कि पहले ई गवर्नेंस क्यों पढ़ते हैं और फिर ये क्यों पढ़ते हैं? Because it only helps you build citizen starter better. And generally there is a larger focus on public participation. तो अब सेवोट्टम फ्रेमवर्क को सीखते हैं, क्या है कहानी क्या नहीं। लेट अस स्टार्ट। तो जो सेवोट्टम मॉडल है, इट इज एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क which basically combines citizens charter। इसको अगर एक लाइन में समझना हो तो it is citizens charter plus quality management system। एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते, citizens charter plus quality management system to improve public service delivery। आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज सर्वोत्तम फ्रेमवर्क, आप ऊपर से बस स्वाद अनुसार इसको छड़कोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कहता है? इट इज अ मॉडल व्हिच हैज बीन डिजाइन्ड to ensure public services are delivered in a timely, in a transparent, in an accountable manner। और इसमें इन्होंने 3 प्रोसेसेस, 3 स्टेजेस दे रखे। स्टेज 1 which is citizens charter, stage 2 public grievance redressal mechanism, public grievance redressal mechanism, स्टेज 3 सर्विस डिलीवरी क्वालिटी। ये ठीक है? सिटीजंस चार्टर, पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड सर्विस डिलीवरी क्वालिटी। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? ठीक। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझो कि ये क्यों सिटीजन स्टार्टर से अलग है, इसको क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे क्या होता है, ठीक। इट इज अ सिंपल क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। Citizens Charter generally, as they've been like the preamble, service delivery quality. Citizens Charters have largely been aspirational, they have been declaratory, they have largely been poetic. Citizens Charter में ढांचा डालना, स्ट्रक्चर डालना, रीढ़ की हड्डी डालना,
वो सर्वोत्तम फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट था कि एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से, एक प्रोसीजरल तरीके से, एक मैनेजरियल तरीके से ये एक्चुअली सर्विसेज डिलीवर होगी या नहीं होगी, कैसे होगी, ये सर्वोत्तम फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट था। Citizens Charter tells the citizens what to expect. Sevottam ensures the government is capable of delivering it. समझ आया मतलब? सिटीजन्स चार्टर सिटीजन्स को बताता है कि आप हमसे ये उम्मीद रखना, सर्वोत्तम सरकार को बताता है कि भैया ऐसे डिलीवर कर देना। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस स्पंदना? यस यस यस, इट्स एन इनेबलर। तो इसको याद है, DARPG जो मैंने आपको बताया था, द वन नोडल फॉर सिटीजन्स चार्टर, इसको DARPG ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। ठीक है, तो सर्वोत्तम comes from the word seva in uttam. Seva is service, uttam is excellence, so excellence in service delivery। समझ आ रहा है? पक्का? प्रॉब्लम क्या थी? चार्टर सिंबॉलिक था, वीक ग्रीवेंस रिड्रेसल, कोई असेसमेंट नहीं था कि ये हम कर भी पाएंगे कि, है ना, एंड ऑफ कोर्स कोई फीडबैक लूप नहीं कि अच्छा अगर ये नहीं हो पा रहा है तो हमको प्रोसेसेस बेटर करनी पड़ेगी इसलिए। आर वी क्लियर? तो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ मोर डिफाइंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ठीक है, गुड। कि आपके ईपीएफओ के क्लेम इतने दिन में सेटल हो जाएंगे, आपका पासपोर्ट इतने दिन में इशू हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर क्या करेगा? सिटीजन चार्टर आपको क्या सर्विसेज है, क्या टाइमलाइन है, क्या क्वालिटी है, और आपका एज ए सिटीजन क्या ऑब्लिगेशन है, यही 4 चीजें बताया है सिटीजन चार्टर। फेयर इनफ। इसको बनाने से पहले सब लोगों से एक बार बात कर लेना कि ये हो पाएगा कि टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी ढंग से मेजर करो, पीरियोडिकली रिव्यू करो कि हाँ भाई ये पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इसको पब्लिकली डिस्क्लोज करो, और फिर फाइनली आप डिक्लेयर करो पासपोर्ट विल बी इशूड इन एक्स नंबर ऑफ डेज, ईपीएफओ क्लेम्स वुड बी सॉल्व्ड विद इन वाई नंबर ऑफ डेज। ये समझ आ रहा है? यस। Then when it comes to your public grievance redressal mechanism, a quick, a fair, a transparent, time-bound resolution of grievance. इसको एक्सेस करना बहुत आसान होना चाहिए कि कंप्लेंट करने में इंसान की पुश्ता निकल गई, ये नहीं चलना चाहिए, वेबसाइट ही नहीं चल रही है, ये नहीं चलना चाहिए। कंप्लेंट्स में भी टाइमलाइंस डिफाइंड होनी चाहिए। अगर कंप्लेंट का रिस्पांस नहीं आए तो टाइमलाइन तो कहां एस्केलेट करनी है बात, ये भी होनी चाहिए। हम कंप्लेनेंट को क्या फीडबैक दे सकते हैं, उसका प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। एंड देयर शुड बी समथिंग कॉल्ड RCA, रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस का प्रॉब्लम है कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये दिक्कत है तो क्यों है। इसका एक बहुत सुंदर इंडिया में गवर्नेंस सिस्टम को हम लेके बनाया है, इसको कहते हैं CP ग्राम्स। It is a centralized public grievance redressal mechanism. This is integrated with departmental grievance cells. क्योंकि ग्रीवेंस से समझ में आता है कि डिपार्टमेंट का सिस्टेमिक फेलियर है तो कहां है। फिर आप, दिस इज लाइक एन अर्ली गवर्नेंस डेफिसिट वार्निंग। क्या इतने लोगों की कंप्लेंट आ रही है पासपोर्ट डिलीवरी को लेके, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो हमारी प्रोसेस में दिक्कत है। ऐसा थोड़ी सरकार को सब कुछ आता है, सरकार ऑल्सो रीइन्वेंट्स, तभी तो सरकार पायलट प्रोजेक्ट्स लेके आती है, तभी तो सरकार हैज टू लुक एट कंटिन्यूअसली implementing and improving their methods.
So CP grants is nothing but an implementation mechanism of the second stage of the Sevottam framework, which is public grievance redressal mechanism. And then you have the third aspect, service delivery quality and capability. कि आप ये कर भी सकते हो कि नहीं. तो capability कहाँ है? Capability human resources में है, capability infrastructure में कि भाई पहुंचवा भी पाओगे कि नहीं, capability processes में है, कैसे कर रहे हो, capability technology में है, capability कौन इसको हेड कर रहा है, लीडरशिप कैसी है. यस. तो आप ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग का नाम सुनते हो, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का नाम सुनते हो, दिस इज नथिंग बट सर्विस डिलीवरी क्वालिटी एंड capability. Yes. You can say so. ये समझ आ रहा है? तो बेसिकली सेवोत्तम ने सिटीजन्स चार्टर को इवॉल्व कर दिया. यस और नो? सेवोत्तम ने सिटीजन्स चार्टर को इवॉल्व कर दिया. सेवोत्तम इज नथिंग बट सिटीजन्स चार्टर 2.2. Now think of Sevottam as a quality management system. Quality मतलब कुछ benchmarking होनी चाहिए. Sevottam principles are aligned with ISO principles. The service principles in ISO is 9001. ठीक है, but adapted for the public sector. तो ये quality management में Sevottam क्या बोलता है? There is a PDCA cycle. Plan, do, check, act. Plan मतलब define standards, do मतलब deliver services, check मतलब monitor performances and grievances, act मतलब improve systems. समझ आ रहा है कि अब ये दोनों मिला के क्यों पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेटर करेंगे? Are we clear on this? Citizens Charter will provide the data to make the overall system better. इसकी प्रॉपर सेवोत्तम सर्टिफिकेशन दी जाती है. ठीक है, प्रॉपर. तो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये मॉड्यूल्स को इंप्लीमेंट करती है, सिटीजन चार्टर, पीजीआरएम, एसडीक्यू, जब ये तीनों को करती है कोई भी डिपार्टमेंट, तो उनको सेवोत्तम का सर्टिफिकेशन मिलता है कि यू आर नाउ रेडी. समझ आ रहा है? अंडरस्टूड? और इसका प्रॉपर थर्ड पार्टी असेसमेंट होता है. ऐसी नहीं मिलती हवा में. इनिशियली इट वाज piloted in 14 organizations. 2010 आते आते I think 10 organizations have sort of adopted it, have in fact achieved Sevottam compliance. Income tax, EPFO, Central Passport Organization, and your select departments of the states. इसके कितने अच्छे केस स्टडीज हैं. We've all heard of something called the Passport Seva program. It is based on Sevottam guidelines. Citizens Charter plus Sevottam principles. Define guidelines. Online grievance can be tracked very easily. It has led to a drastic reduction in your delays and corruption with respect to passports. EPFO is another example. In fact, EPFO, remember मैं आपको उमंग के बारे में बता रहा था, the Umang app which allows you to access multiple services. And several states also like Karnataka, Andhra Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh,
They have linked their public service acts या right to public service acts with सर्वोत्तम गाइडलाइंस कि हम इस बेसिस पे करेंगे. तो सर्वोत्तम और सिटीजन चार्टर का फर्क समझ में आया. सिटीजन चार्टर एक डिक्लेरेटरी आइडिया है, सर्वोत्तम ऑपरेशनल है. सिटीजन चार्टर आपको वादे बताता है, सर्वोत्तम आपको डिलीवरी पे फोकस करता है. सिटीजन चार्टर की इन्फोर्समेंट बहुत लिमिटेड है. सर्वोत्तम इज अ सिस्टम बेस्ड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क. सिटीजन चार्टर एक स्टैंडर्ड स्टैटिक फ्रोजन डॉक्यूमेंट है. सर्वोत्तम कंटिन्यूअसली इंप्रूव होगा बेस्ड ऑन फीडबैक. आर वी क्लियर ऑन दिस? यस. सर्वोत्तम मस्ट बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल सिटीजन सेंट्रिक डिपार्टमेंट्स. In fact, you must integrate Sevottam also with Mission Karmyogi. है कि नहीं? And you should link performance appraisal of civil servants with service standards. और इसी डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे आप पॉलिसी रिफॉर्म ला सकते हो. और जो सिटीजन का जो फीडबैक लूप है उसको और बेहतर करो. वही आपको बताएंगे कि असल में ग्राउंड पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. क्लियर? चैलेंजेस सेम ही है सर्वोत्तम के. ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है, कैपेसिटी नहीं है, सिटीजन नहीं जानते, इंप्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा. सेम प्रॉब्लम्स. बट अगर इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, लुक एट द वे फॉरवर्ड ऑफ सर्वोत्तम. आया समझ में? पक्का? Don't write generic answers in questions where you can hit it out of the park. है कि नहीं? जो हाथ में है, जो पता है कि यहां मेरे को 10 में से 8 मार्क्स मिल सकता है, 7 मार्क्स में मेरे को मिल सकता है, तो फिर मैं तो सिक्सर में मारूंगा ना. फिर गुड. The second thing that has happened is that several states have started to enact right to public service legislation. Last year, Kerala. RTPS is like a legal enforcement. सर्वोत्तम अभी भी डिपार्टमेंटली लग रहा है. आरटीपीएस एक लेजिस्लेटिव एक्शन है. आरटीपीएस इज लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन. है कि नहीं? टाइमली डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज. एंड अगर डिले होगा तो ऑफिशियल्स पे पेनल्टी लगेगी. एंड इट देयरफॉर प्रोवाइड्स ए वेरी वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट टू सिटीजन्स चार्टर. Yes or no? This is right to public service जो हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं, उसका एक्चुअल इंप्लीकेशन यहां है. ये राइट टू पब्लिक सर्विस कम्स फ्रॉम द एज ओल्ड प्रॉब्लम कि किताब का कानून और जमीन के कानून में इंडिया में बहुत डिफरेंस है. इंडिया में पब्लिक सर्विसेज आर सर्टिफिकेट बेस्ड, है ना? पब्लिक सर्विसेज आर इन इंडिया सर्टिफिकेट बेस्ड. एंड सर्टिफिकेट बेस्ड पब्लिक सर्विसेज are no exception to this law on paper versus law on ground. कानून में जिस तरह से जो जो किताब में लिखा है जितनी आसानी से आपको राशन कार्ड मिल जाएगा, और असल में राशन कार्ड मिलने में जमीन आसमान का फर्क है. So whether you are poor and you need to be on the and you're on the below poverty line, and you're wealthy and you want a driving license, कुछ ना कुछ लगता है. So several states have therefore passed public service acts called the Right to Service Act.
मैंडेट बहुत सिंपल है कि कितने दिन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिलेंगे टू अप्रूव या टू रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर अ पब्लिक सर्विस। वो इनकम सर्टिफिकेट हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर वो डेडलाइन इज नॉट मेट या द एप्लीकेशन इज रॉन्गली रिजेक्टेड, यू शुड अलाउ फॉर एन अपील। एंड अपॉन अपील मतलब इंटरनली अपील विद इन द सिस्टम, within the bureaucracy, between lower organization to higher authority. And appeal के time the bureaucrat can be ordered कि भैया या तो सर्विस दे दो, and can also be fined for not providing the service in a timely manner. This concept of rights based, the right to provide service is nothing but a larger idea called a rights based approach to governance. जब तक आप हक नहीं दोगे तब तक इंडिया में चीजें हिलेंगी, है कि नहीं? जब तक आप हक नहीं दोगे लोगों को, इंडिया में चीजें हिलेंगी नहीं। यस और नो? राइट टू फूड, हेल्थ, हाउसिंग, अब ये राइट या तो लॉ के थ्रू आ रही है, मतलब पार्लियामेंट लेजिस्लेशन के थ्रू आ रही है, या कोर्ट आपको बना के दे रहा है। राइट टू फूड एंड राइट टू हाउसिंग आर कोर्ट डिटरमिन्ड राइट्स। आर्टिकल 21 का एप्लीकेशन पढ़ा था ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो एक सिटीजन को गिव्स यू स्वीपिंग राइट्स। मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए। एमजी नरेगा विच इज नाउ गोइंग टू बिकम वीजी राम जी ऐसे करके मैं कोशिश कर रहा था, सॉरी नहीं हो पाया, लाइक वीजी राम जी। अब वो वीजी राम जी एक्ट जो है is at the end of the day a legal right, but I genuinely I find it very catchy. The abbreviation I find it very catchy. There's of course a lot of politics behind it, and it's just very catchy. I'm not going to get into whether it is the right thing or the wrong thing, because the UPSC is not going to ask you, do you think renaming MG Nareka was right or wrong? ये ना आपको प्री में पूछेंगे ना आपको मेन में पूछेंगे, तो इसके लिए आप अभी चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है? गुड, यहां तक समझ आया? So MG Narega, right to education, right to information, these are all rights based approaches. कि क्यों नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट राइट्स बेस्ड अप्रोच है ना, इसमें मैं आरटीआई जोड़ दूं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जोड़ दूं, एमजी नरेगा या वीजी राम जी जोड़ दूं, कुछ भी जोड़ दूं, कोर्ट रिलेटेड जोड़ दूं, राइट जूरिस्प्रूडेंस जोड़ दूं, policy makers and activists will always be attracted to this as a strategy. Now do you understand what are we building? I'm building development models for you. लिखा है ना गवर्नेंस की पहली लाइन में, जो कोई नहीं पढ़ता ढंग से। Developmental models is like constitutional morality. Never start with it, always end with it, because you will have enough to understand. Now do you understand why we don't do, I've never ever taught constitutional morality at the beginning. जब एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप पहले ही लेक्चर में क्या ज्ञान दिए जा रहे हैं? पहले पढ़ तो लो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। हम नॉन स्टेट एक्टर्स पढ़ेंगे, रेगुलेटरी गवर्नेंस पढ़ेंगे, प्लान डेवलपमेंट पढ़ेंगे, वी विल लुक एट सर्टिफिकेट बेस्ड सर्विसेज, राइट्स बेस्ड अप्रोच, मल्टी डिमेंशनल प्लानिंग, फिर जाके यू विल क्रिएट अ डेवलपमेंटल मॉडल ना, कि अच्छा ऐसे 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 मॉडल्स हैं, कि पहले ही शुरू कर दोगे डेवलपमेंटल मॉडल ऐसा होता है। इस राइट्स बेस्ड अप्रोच को क्यों प्रेफर किया जाता है? कि भाई ये सरकार का दान नहीं है, ये सरकार का
वो नहीं, एक सरकार आपको पे खैरात नहीं दे रहा, ये एज सिटीजन आपके जस्टिफाइड क्लेम्स हैं. डू वी अंडरस्टैंड दिस? Government also has now started to becoming an active supporter of rights-based strategies. In fact, good governance and rights have now become synonymous. ये पहले कभी नहीं होता था. आज अगर आप देखो, political and bureaucratic efforts are all defined on the basis of what are your rights. They are not to just theoretically empower governments. Rights are also to ensure that politicians don't harass bureaucracy and senior bureaucracy does not harass lower bureaucracy. Rights are an administrative tool which brings legitimacy. समझ आ रहा है? तो जो राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट्स हैं, it traces its origin to the concept of citizen starter. अभी सिटीजन स्टार्टर सर्विस की बात कर रहे हैं, तो मैं लॉ लिख के दे रहा हूं ना, लेट 90s अर्ली 2000s. सिटीजन स्टार्टर्स की प्रॉब्लम की वजह से सर्वोत्तम फ्रेमवर्क, सिटीजन स्टार्टर्स की इनहेरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से द आइडिया ऑफ अ राइट्स टू, ये ऑल ऑफ दीज फोर आर डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट. राइट टू पब्लिक सर्विसेज. सो जो सेकेंड एआरसी ने चार्टर्स का सर्वे किया, they found more than 40% of charters had no time frame for development, no time frame to respond, which is why the Right to Public Service Act solves the compulsorization issue of citizen starter. ठीक है, या तो सर्विस दो या तो नहीं दो, गलत कर रहे हो तो फाइन लगेगी. और ये जो राइट टू सर्विस एक्ट जो एक मॉनेटरी पेनल्टी लगा रहा है, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. यस और नो? टाइम पे आरटीआई क्लियर नहीं करोगे तो पैसा कटेगा. सेम चीज यहां पे भी है. सो इट फोर्सेस ऑफिशियल्स to respond to legitimate citizen demands or face very grave personal financial consequences. And interestingly, right to public service has been promoted mostly by top politicians, especially chief ministers, and of course top bureaucrats. If you think of civil society, except for the center, civil society has played a very minor role. आपने कौन से एनजीओ का आज तक नाम सुना है जो राइट टू पब्लिक सर्विस के बारे में बात करता है? आपने राइट टू इंफॉर्मेशन के 10 एनजीओ सुने होंगे, है कि नहीं? दैट पैटर्न इज वेरी स्ट्राइकिंग. Here, top pure politicians, top bureaucrats are pushing for right to public service. Maharashtra's right to service is considered to be the brainchild of the chief minister. And except for the central level, at the state, public civic society is not playing any role, very minor. ये भी हो सकता है chief ministers are trying to secure brownie points, which is fine, which is ठीक है, part and parcel of life. But this can also be to show कि भाई, this could be a sense of evidence that it is these public service acts are not just about the empowerment of citizens or lower officials. It is also a tool by which top politicians and bureaucrats are able to regain control over lower bureaucracy. Because service to lower bureaucracy deliver कर रहा है,
यस और नो? सब गाली कमिश्नर को देते हैं कि अरे वो ट्रैफिक वाले उठा के एक कट कमिश्नर को दे, क्या पता कमिश्नर को कुछ नहीं मिल रहा, बिन बात के कमिश्नर गाली खा रहे हैं है कि नहीं? या Madhya Pradesh was the first state to implement a Public Service Act, 2010. Kerala is the most recent one to really put it together. ठीक है? So it has to be understood in this context. ठीक है? Are we clear on this? Yep. Around 10-12 states have a Public Service Act. Delhi में it is called the Right to Citizen to Time Bound Delivery Act 2011. And services are, what are the services? जैसे मध्य प्रदेश में certificates, land records, pensions are covered. बिहार में income, caste certificate, licenses are covered. पंजाब में revenue and local body services are covered. दिल्ली में certificate and licenses are covered. आपने सुना होगा लास्ट टाइम दिल्ली इलेक्शन में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात हो रही थी. इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ राइट टू पब्लिक सर्विस. कर्नाटक में Karnataka has one of the largest services offered. It's called the Sakal Services Act of 2011. They do more than 150. I think several hundreds of services are provided. Rajasthan has the RTPS Act 2011, Revenue Welfare Services. Uttar Pradesh has the Janhit Guarantee Act, 60 plus services. Haryana has the Right to Service Act 2014. Even Uttar Pradesh does about 60 plus services. So right to public service और citizen starter का क्या लेना देना है? अब इसको right to service सेवोत्तम और citizen starter को साथ में मिला के सोचो. citizen starter वॉलंटरी है, सेवोत्तम मैनेजेरियल है, आरटीपीएस लीगल है. यस और नो? यस और नो? सिटीजन स्टार्टर डिक्लेरेटरी है, सेवोत्तम ऑपरेशनल है, आरटीपीएस इन्फोर्सेबल है. सिटीजन स्टार्टर आपको सर्विस स्टैंडर्ड्स देगा, सेवोत्तम आपको कैपेसिटी और ग्रीवेंस देगा, और आरटीपीएस आपको पेनल्टी और अपील देगा. है कि नहीं? Citizen charter is a moral obligation. Sevottam is an administrative accountability mechanism. RTPS is a legal obligation. Correct or not? Sujata, please write it little. I am. मैं मिला के 12 शब्द बोला है बेटा, 12 शब्द बोला है. Time stamp 1 hour 2 minute. After this, you can just rewatch it if you want. If it is okay for you, otherwise I will write it. No problem. लिख दूं मैं? कोई बात नहीं. अब सिटीजन चार्टर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सिटीजन चार्टर तो करना ही पड़ेगा. सिटीजन चार्टर, सर्वोत्तम फ्रेमवर्क और राइट टू पब्लिक सर्विसेज. ठीक है? पक्का? तो सिटीजन चार्टर क्या है जी? वॉलंटरी है. इट इज डिक्लेरेटरी इन नेचर. It gives you service standards. It is a simple moral obligation. Correct? सेवोत्तम क्या है? मैनेजेरियल है. Yes. It is operational in nature.
It is a method of administrative accountability. It is to build capacity and grievance. सर्वोत्तम सर्टिफिकेशन लगता है ना. एंड आरटीपीएस क्या है? लीगल, इनफोर्सेबल. यहां क्या लगती है? पेनल्टी और अपील. ठीक है बेटा. ओके. और कुछ लिख दूं मैं? ये चलेगा? पब्लिक सर्विस डिलीवरी बीच में लिख के ऐसा बढ़िया डायग्राम बनाएगा, मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेम प्रॉब्लम, चैलेंज सेम. आरटीपीएस इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, पेनल्टी डाइल्यूटेड है, लोगों को पता नहीं है, कवर नहीं करते ठीक से, 10 तरह की प्रॉब्लम. इनफैक्ट आई वाज going through an article published last year about Maharashtra. मतलब it is phenomenal in the way that things have been done and also not done at the same time. They have a Maharashtra, they have a portal called Aapki Sarkar portal. Maharashtra has about 1027 certified notice services given under their, RTPS Act. They're one of the only 7 states. There are only 7 states. Maharashtra is one of them to have an independent commission to look at the implementation of these services. Karnataka today, I think, has more than 2000 services. And since Maharashtra set up, 2015 Maharashtra was operational, more than 1 crore citizens have registered. And about, I think, 20 crore citizen applications have been processed. It has a 93%, settlement rate. आया समझ में? This is the good side. The bad side is about 43% of the 1000 services that have been notified, they have not been uploaded, they have not been integrated with the digital platform. Which brings me to the third point, e-governance and digital initiatives. ठीक है? So e-governance and digital initiatives will also have a very similar line of change, a similar line of understanding, which is ये सब आप तभी कर पाओगे और अच्छे से इंप्लीमेंट तभी कर पाओगे if this cannot be done without digital interventions. Yes or no? आपको फीडबैक चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए. 43% of the 1000 services in Maharashtra have not been integrated to Maharashtra's digital service delivery mechanism platform where you can check the status. You cannot deliver services effectively in today's time without a digital component. And that digital component has very little to do with, just about the services. It's also about checking timelines, the feedback loop. Okay? And finally, public participation, which is when you're generally looking at, trying to involve citizens more actively in the formulation, in the implementation of these charters. Public consultations, feedback surveys, पार्टिसिपेटरी ऑडिट्स, जिसको हम अभी एमजी नरेगा के टाइम पे सोशल ऑडिट्स पढ़ेंगे, उस तरह से. डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? गुड. ठीक है. तो
I'm going to give you a separate note on this. I'm just sitting and updating them. So Karnataka का भूमि प्रोजेक्ट एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑनलाइन सर्विसेज, केरला का पुलिस जन मैत्री प्रोग्राम, तमिलनाडु का मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन का पब्लिक हेल्थ डिलीवरी, छत्तीसगढ़ का पीडीएस स्कीम, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का सारथी एंड वाहन प्लेटफॉर्म्स, यस, रेलवेज का रेल मदद पोर्टल, राइट, पोस्टल डिपार्टमेंट का इंडियन पोस्ट सिटीजन चार्टर, दिल्ली का दिल्ली जल बोर्ड चार्टर, ये सारे, ये अपना ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट इज नथिंग बट सिटीजन चार्टर, राइट। डिफेंस सिविल सर्विसेज में जो स्पर्श का जो स्पर्श डिफेंस पेंशन स्कीम है, सिस्टम है, वो सारे एग्जांपल्स एक जगह लिख के दे दूंगा मैं, ठीक है। CP ग्राम्स ऑफ कोर्स इज एंटी करप्शन. Are we clear on this? It works the best. Citizen Starter will work the best when there are high volume citizen services, when there are welfare schemes for urban governance, for digital services. इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि सिटीजन चार्टर सर्वोत्तम फ्रेमवर्क, राइट टू पब्लिक सर्विसेज, you know, all of this will work the best when you have a high volume citizen service. There is welfare schemes that you have to check out. Urban governance में इसका बहुत अच्छा यूज है because digital penetration is higher. Digital services can be implemented best through this. A lot of your regulatory services, licenses, permissions, ease of doing business, a lot of your grievance heavy sectors, क्योंकि फिजिकली कंप्लेंट करने जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, करेगा कि नहीं करेगा हेल्प, यस और नो, यहाँ पे बहुत अच्छा सा काम कर रहा है पुलिस, लोकल बॉडीज, रूरल डेवलपमेंट, हेल्प में बहुत काम करने का जरूरत है. नाउ थिंक अबाउट इट, सिटीजन्स चार्टर प्लस RTI, does it not help you build better transparency? Citizens Charter plus Sevottam model या Sevottam framework does it not help you with better service quality? Citizens Charter plus Public Service Acts, does it not give you better legal enforceability? Citizens Charter plus Digital India, does it not give you better e-governance? And Citizens Charter plus Social Audit, does it not give you better participatory accountability? Pakka? Make sense? Of course. So, done, and done. Pakka? Good. See you in the morning. Tuesday I'll manage. Yeah. ठीक. See. Till today,
I never take a class without preparing for it. So this is my reading material on Citizens Charter. These are my post-it notes. There's a lot. बिना पढ़ के नहीं पढ़ाता मैं. हाँ मतलब सुजाता पूरा. So all the developments are here. Broader points are always here. हाँ मतलब no मतलब in that sense. If you compare it to the earlier lectures, that is how you always maintain, you get better at what you do. जब हम आप लोगों को कहते हैं ना हमेशा से कि एनालाइज योर परफॉर्मेंस, गेट बेटर एवरी डे. आप पिछले एमसीए 1 2 3 इसका जितना सिटीजन चार्टर का क्लास देखो और ये देख लो, हमेशा इफ यू डू नॉट गेट बेटर एट व्हाट यू डू, क्या फायदा. विदित कर लो यार, जनवरी तक कर लो, टाइम. चलो, सी यू इन द मॉर्निंग, बाय बाय.